Hello everyone, welcome to my channel Siksha Vriddhi. This is my very first video on the YouTube. I have started this channel with one clear goal to make the business study easy, interesting and exam friendly for the students. If you are a student who find business concepts confusing or difficult, this channel is specially made for you. I have heard that many students find the business study boring or a little bit difficult for them understanding the concept. But trust me, once you understand the concept from the basic, you will find it very interesting. Coming to the point, we are going to cover in this video the concepts from the basics along with the practical or real life examples. Also, we also prepare for the how to write the answers in the exam. So, if you want to understand the business study from the basic and score better in the exam, make sure you stay connected with my channel. So, the introductions part is completed. Now, I have going to start coming to the point that what is the meaning of the management. The whole business study is around revolving around the management. The most part of the subjects about talk about the management. What is the management? So we have to understand, first we have to go through the basic, from the basic, and then we reach the level where we allow ourselves to write in the exam something which will helpful to score better. So, have you ever noticed that in two shops that sell the same product but one becomes successful while the other shut down? Or why some company grow rapidly while other fail? Even with good product, what is the answer of the above questions? Again, I am saying that have you ever noticed that in two shops sell the same product but one becomes successful while the other shut down? Or one company growing rapidly while the other close. Why? The answer is management. It's all about the management. If the organizations follow the management, then it will going to grow rapidly. So management is a word we hear every day, that in time management, money management, office management. What exactly the management in the business study? Whether it is connected to the time management, office management, or the money management, or it is a separate kind of things in the management in the business studies. So in this chapter, the chapter 1, we will clearly understand what management is. So the chapter is nature and the significance of the management. Hmm. The nature talk about the characteristics of the management, and the significance is the importance. So we are going to write an importance of the management. So what is the management? Is the word. It is completely, we are saying that in a management is a word, it is completely written here, the word. But what is the concept behind this word? There might be something, no? There might. So here, that in successful organizations do not achieve, it is mentioned in the first paragraph of this chapter is clearly mentions, they are trying to describe what is management. The successful organizations do not achieve their goals by chance, but by following a deliberate process called the management. So from reading the first paragraph of the chapter, we clearly say that this chapter is going to teach us about the management. Okay, so it's clearly say that in successful organizations do not achieve their goals by chances but by following a deliberate process called the management. So जो भी process and organizations follow करे to achieve the success, that deliberate process is called a management. So management is essential for all the organizations, big or small. It means that irrespective of its sizes, irrespective of the size of the organizations, or whether it is a profit or non-profit making organizations, like there is organizations that are completely operate for earning the profit, or some organizations that are non-profit organizations, like we say NGOs, that are for non-profit organizations. So they also have to follow the deliberate process, this deliberate. And the service and manufacturing, whether an enterprise is a service enterprise or manufacturing enterprise, it also have to follow, if it want to achieve the success, then it also have to follow the deliberate process called the management. So from here we are saying that management is necessary so that individual make their best contributions towards group objectives.
manager take the decisions as to who will do what and when they will do it and what resources they will use. So मैनेजमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो दैट इंडिविजुअल्स का जो कंट्रीब्यूशंस है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है, दैट इट आइडेंटिफाई कौन से पर्सन ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है किसी टास्क में एंड कौन सा पर्सन किस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, कितना रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, कितना टाइम वेस्टेज हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्टेज हो रहा है. तो ये सब चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लियरली थ्रू द मैनेजर्स. एंड द सेकेंड लाइन इट इज़ मेंशन दैट अ मैनेजर टेक द डिसीजंस. जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं कि दैट हु विल डू वट, विच पर्सन परफॉर्म द वट टास्क एंड व्हेन दे विल डू इट एंड what resources they will use. So the basic job of a manager is the effective and the efficient utilizations of the physical, financials and the human resources to achieve the organizational objective. सो पहला बोला है कि मैनेजर डिसीजंस लेगा कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज़. एंड देन द सेकेंड लाइन दे हैव क्लियरली मेंशन्स कि किसी भी मैनेजर का बेसिक जॉब क्या है कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशंस ऑफ किसका, फिजिकल, financials and the human resources. फिजिकल, फाइनेंशियल्स एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. किस लिए? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. No matter what the organization is or what its goal might be, they all have something in common, that is the management and the managers. So पहला पॉइंट यहाँ पर बोला था इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, दैट एंड मैनेजमेंट इज नेसेसरी. एंड द लास्ट लाइन में दे ऑल्सो एम्फेसिस अगेन दैट एंड नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज एंड व्हाट द गोल माइट बी, कि कोई मैटर नहीं करता कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस किस टाइप का है, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, सर्विस है कि मैन्युफैक्चरिंग है, बिग है, स्मॉल है, और इसका गोल क्या है. दो चीज़ बहुत कॉमन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, इज़ द मैनेजमेंट एंड द मैनेजर. मैनेजमेंट दैट डेलिबरेट प्रोसेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कंटिन्यूसली एंड द सेकेंड इज़ द मैनेजर हु टेक द डिसीजन. ओके, कि कितना रिसोर्सेज कौन यूज़ करेगा, कौन जॉब परफॉर्म करेगा, कब जॉब परफॉर्म हो जाना चाहिए एंड द ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे. ठीक है. एंड ही विल ऑल्सो इंश्योर दैट एंड वेदर देयर इज़ एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज है कि नहीं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अच्छा, वाई इट इज़ मेंशन दैट एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वी कैन कम्प्लीटली से दैट ना कि properly utilize, but there is an meaning of this effective and efficient utilizations. Doing the task effectively means you are doing in a correct way, but efficiently it means in a right way, means you are doing the correct task in a right way without wasting the resources, without wasting the physical resources or financial resources or आपका human resources. Okay. So the first and second paragraph will give you the basic idea about why the management is important in the organizations. Again, in the third paragraph it is mentioned that a management consists of a series of interrelated functions that are performed by all the managers. अच्छा, यहाँ पर क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी MCQs भी बन सकता है कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ द इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स. फॉर एग्जांपल्स, मैनेजर हैव टू प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म, ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज. पहला तो प्लानिंग करना होगा. प्लानिंग क्या, कि आपका फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है. द फर्स्ट वन इज़ द प्लानिंग. हम लोग फर्स्ट क्या कर रहे हैं, प्लानिंग. प्लानिंग कि हमारा फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है. द सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग. The second is organizing. What we are organizing? Organizing the resources to achieve that objective. So first हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंड द सेकेंड कि कितना रिसोर्सेज लगेगा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, एंड देन रिक्रूट एंड सेलेक्ट द एम्प्लॉयज़ हु कैन इम्प्लीमेंट दिस ऑब्जेक्टिव. दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्टाफिंग.
ऑल्सो नोन एज अ स्टाफिंग। इट मीन्स आपने पहले अपने फॉर्म का ऑब्जेक्टिव प्लान कर लिया, फिर आपने ऑर्गेनाइज किया रिसोर्सेज को उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एंड राइट नाउ you are appointing the recruit the right people for the right job who have the right knowledge of that job. Okay, so who can implement these objectives done, and the giving directions, the planning done, organizing done, staffing done. Okay, now give the direction to that persons who are going to implement the objectives, and communicating and motivating this employee to achieve the objective effectively and efficiently, and ultimately checking whether everything is going as per the plan or not. तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना पढ़ा कि पूरा मैनेजमेंट क्या है। पूरे बिजनेस स्टडी में हमें जो पढ़ना है वो इसमें इस एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया कि फर्स्ट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। ये नहीं है कि एक फंक्शन परफॉर्म किया डन कंप्लीट मैनेजमेंट इज़ कंप्लीट, नहीं। द मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज़, एक पूरा सीरीज़ फॉलो करना पड़ता है कि वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन, एंड इट इज़ एन इंटर रिलेटेड। अगर एक भी स्टेप नहीं हुआ तो दूसरा वाला स्टेप नहीं हो सकता है। लाइक अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते अपने रिसोर्सेज को ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अनटिल एंड अनलेस यू प्लान द ऑब्जेक्टिव। आपने ऑब्जेक्टिव भी प्लान नहीं किया तो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड, आपने स्टाफ रिक्रूट कर लिया लेकिन आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता नहीं है, आपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज नहीं किया है, सो यहाँ पर टाइम वेस्टेज हो जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेस्ट होगा हमारा। सो इसलिए कहा जाता है द फर्स्ट वन इज़ अ प्लानिंग। फर्स्ट आप प्लान कर लो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, एंड देन रिसोर्सेज को अगर आपने प्लान कर लिया मीन्स यू आर वेरी क्लियर कि किन किन लोग कौन से लोग होंगे जो इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएगा इन ऑब्जेक्टिव को। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव ही प्लान नहीं किया है तो आप किसी भी अनरिलेटेड पर्सन्स को एम्प्लॉय कर लोगे, बाद में वो पर्सन शायद उस ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। सो इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्टेज हुआ, मनी वो भी वेस्ट हुआ। सो वी आर नॉट गोइंग टू अल्टीमेटली, इफ अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया बाय हुक और क्रुक, नो मैटर, बट दैट ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ना, बिकॉज हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमारे को ऑब्जेक्टिव अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और यहाँ तो आपने टाइम वेस्ट किया और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशंस नहीं किया प्रॉपरली, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो फॉर इफेक्टिव एंड अचीवमेंट ऑफ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑब्जेक्टिव यू हैव टू फर्स्ट प्लान द ऑब्जेक्टिव कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, एंड देन ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज कि आपके पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है उस वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। Once your objectives are planned and your resources are organized, now recruit the persons who will achieve that objective in the available resources in an effective and efficient way. Okay, सो ये 3 स्टेप डन हो गया। उसके बाद द 4th स्टेप इज कम इज़ द डायरेक्टिंग। नाउ गिव द डायरेक्शंस कि हाँ ऐसे करना है, इस टाइम पर करना, इतना टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए डायरेक्शंस, एंड देन कम्युनिकेट विद देम। अगर आपने डायरेक्शन दे के छोड़ दिया तो देन देयर इज़ नो मोटिव ऑफ द मैनेजमेंट। यू शुड कम्युनिकेट, यू शुड हैव अ रेगुलर कम्युनिकेशंस विद द पर्सन्स हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव फॉर योर फर्म to stay updated with the task they are performing, and motivating these employees to achieve to achieve the objective effectively and efficiently. And motivate करना, पहला बात है आपने डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन देके छोड़ दिया तो नहीं चलेगा। यू हैव टू कंटिन्यूसली कम्युनिकेट विद देम कि हाँ कैसा काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रहे, सो दैट यू कैन मॉडिफाई देम। ओके, उसको आप ठीक कर सकते हैं। एंड देन उनको मोटिवेट करो कि आप ऑब्जेक्टिव जो भी आप अचीव कर, आप जो भी ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करें, जो भी टास्क परफॉर्म करें उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करो, ठीक है। एंड अल्टीमेटली मॉनिटरिंग करेंगे, दिस प्रोसेस को बोलते हैं अल्टीमेटली चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान और नॉट इज़ द मॉनिटरिंग। दिस इज़ द लास्ट स्टेप। सो हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट इज़ प्लानिंग, सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज़ स्टाफिंग, फोर्थ इज़ डायरेक्टिंग, एंड देन कम्युनिकेटिंग and motivating these employees, and the 6th is monitoring. So ये जो 6 स्टेप्स आ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसमें से एक भी आप गैप नहीं कर सकते। यू कैंट स्किप to the other steps. You can't say that and I don't want to plan something but I have to organize. No, it is not possible. If you are doing it, you will find you will stuck at a later point, okay, in this task. सो आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर हो, और अगर नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए।
Coming to that last point, however, the time spent by the manager in different functions is different. Managers at the top level spend more time in planning and organizing than the manager at a lower level. सी यहाँ पे बोला है कि मैनेजर्स ना किसी भी काम को करने में जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो इट डिफरेंट टाइम्स जो भी मैनेजर्स टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड देन फंक्शंस, वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट टाइम स्पेंड करेंगे. ठीक है. लाइक टॉप लेवल जो भी मैनेजर है तो वो प्लान करने में ज़्यादा टाइम, प्लान एंड ऑर्गेनाइजिंग करने में ज़्यादा टाइम. वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू दैट इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज आपको प्लान करना है ना कि आपको अचीव क्या करना है. यू कैंट रैंडमली से समथिंग कि मुझे ये अचीव करना है. यू हैव टू बी ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि मुझे ये अचीव करना है. तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक प्रॉपर, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं आपका. इन लेटर हम पढ़ेंगे कि कौन से टॉप लेवल होते हैं, मिडिल लेवल, लोअर लेवल होते हैं. सो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट रहेंगे वो प्लानिंग करेंगे कि हाँ मुझे कौन सा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इस टाइम पर अचीव करना है, क्या अचीव करना है, क्यों अचीव करना है, वो प्लानिंग करना होगा. तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. एंड द सेकेंड इज़ द ऑर्गेनाइजिंग. अब प्लान कर लिया कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, अब उसके लिए रिसोर्सेज तो ऑर्गेनाइज करो ना कि हाँ ये रिसोर्सेज है, या फिर अब यू हैव टू थिंक कि ना कि अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी है, वो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव प्लान हो सकता है, अचीव हो सकता है कि नहीं. सो इन दो, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में, इन दो फंक्शंस में ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, बिकॉज वहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सब कुछ क्लियर होता है. सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मच, यू जस्ट हैव टू गिविंग द डायरेक्शंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली योर ऑब्जेक्टिव. ओके, done. So I hope that this complete paragraph about the basics of the management is understood to you, and there is no problem in it. So coming to the second point is a modern concept of the management और meaning of management. यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट क्या है, क्यों है, एंड क्यों इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट के. तो ये बेसिक्स था. एंड नाउ यहाँ से मीनिंग स्टार्ट होता है, जो कि डिफाइंड मीनिंग दिया रहेगा आपको. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो ये डेफिनेशन से आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर केस स्टडीज़ आ गए या किसी भी चीज़ का कोई भी क्वेश्चन आ गया, यू हैव टू बी राइट दिस लाइन. अगर रिगार्डिंग मैनेजमेंट कुछ भी आया है तो मैनेजमेंट बहुत सिंपल है. मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है,
व्हाट इज़ अ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, बिकॉज इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ के आया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक डेलिबरेट प्रोसेस है. सो व्हाट इज़ अ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ किस चीज़ का? गेटिंग थिंग्स डन, कि मेरा काम हो जाए विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स. जो भी मेरा गोल है उसके रिगार्डिंग जो काम है वो हम अचीव कर ले इफेक्टिवली, एंड जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, गोल्स अचीव होगा, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होगा. So, very simple points. According to the modern concept, management is a process of getting things done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently. Done कि हम जो भी goals achieve करें वो effectively achieve करें and efficiently achieve करें. Okay? Done. So the concept of the management insists on the three terms. अब हमने definitions पढ़ा. Management is a process. So process क्यों, इसको process क्यों बोला गया? So process refers to the series or sequence of the steps in the मतलब लास्ट पेज में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ द इंटररिलेटेड फंक्शंस. ओके, सो इसलिए बोला गया था द प्रोसेस रेफर टू द सीरीज और सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म द सीरीज ऑफ द फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन. दीज फंक्शंस आर द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये पूरा डन हो गया. सो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? दैट एंड लास्ट पेज में भी हम लोगों ने रहा दैट लास्ट पेज विल हेल्प यू टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द एग्जाम्स एंड टू रेफर द लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड द concepts in the exams. So management is a series of the interrelated functions and it is a process because it performs series of the functions to get the things. So we can also write it that management is a series of the interrelated functions and to get the things done, and the functions are क्लियर. अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था. प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर डायरेक्ट कर स्टाफिंग कर रहे, फिर डायरेक्टिंग कर रहे, फिर कम्युनिकेटिंग कर रहे, कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं. डन. अच्छा, इफेक्टिवनेस. अच्छा, उसके पहले यहाँ पे दिस फंक्शंस आर, आपने बोला कि फंक्शंस पढ़ाए, तो फंक्शंस आर डिस्कस्ड इन डिटेल्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर. पूरा बिजनेस स्टडी इसमें है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ये पूरा चैप्टर सब्जेक्ट है इसी चीज़ पे, तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. अभी यहाँ पे जस्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए उसके फंक्शंस को थोड़ा आइडिया ले लियो. Effectiveness. It is concerned with doing the right task. As I said before, कि what do you mean by the effectiveness? It means you are doing the right task. आपको जो करना चाहिए आप वही कर रहे हो, तो it means effectiveness. Completing activities and achieving the goals. Like अगर आपको कुछ goals achieve करना है, like आपको कोई test देना है तो उसके लिए पढ़ना है, तो आप पढ़ रहे हो, तो that means for achieving something you are doing the right task. ओके, इन अदर वर्ड इट इज़ कंसर्न विथ एंड रिजल्ट. सो इफेक्टिवनेस का डायरेक्ट रिलेशंस रहता है एंड रिजल्ट के साथ, कि मुझे ये अचीव करना है तो ये काम करना है तो मैं कर रही हूँ, तो मतलब ये काम क्यों कर रही हूँ? अचीव करने के लिए. सो इट मीन्स वो अचीव करने के लिए, तो वो मेरा एंड रिजल्ट है. सो इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट्स. बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम. इट मीन्स अगर आप हम बोलें कि आप यू आर इफेक्टिव, इट मीन्स जो भी आपको काम दिया गया वो आप कर रहे हो, ठीक है, एंड कंप्लीट इन ना टाइम, कि आपका जो भी टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना चाहिए था आपने वो काम कंप्लीट कर लिया. इट मीन्स यू आर इफेक्टिव. आपका एक टेस्ट था, उसके लिए पढ़ना था, जिस टाइम तक पढ़ना था और तो आपने पढ़ लिया, तो वो मीन्स यू आर इफेक्टिव, योर स्टडीज़ आर इफेक्टिव. चलो, एंड एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? इट रेफर टू डू द टास्क इन द राइट वे with minimum cost and optimum utilizations of the resources. It means कि आप effective है but you are not efficient. We can say that आपको काम करना था, इस टाइम तक आपने किया, but not in an ethical manner. You are not performing the tasks in an ethical manner, or you have spent a lot of money in performing that task. But if अगर आप अच्छे तरीके से करते तो कम पैसे में हो जाता, ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया, तो नहीं किया जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ा. इट मीन्स इट इज़ नॉट एफिशिएंट, ठीक है. एफिशिएंसीज इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. एफिशिएंसीज क्या होता है? कॉस्ट, आप कॉस्ट बेनिफिट कि आपका किसी टास्क को कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, इस चीज़ को आप एनालाइज करते हो. इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर इक्विपमेंट्स पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट. इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस यूसेज. मतलब जितना रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे कम में यूज़ करके उसको प्रॉपरली यूज़ करके ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव किया जाए. इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग द लेस इनपुट. आपका जो भी इनपुट्स है, मनी है, मटेरियल्स है, इक्विपमेंट्स है एंड पर्सन्स है, उसको बहुत कम
मतलब जितना कम यूज़ कर सके उतना कम यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सके. Okay, management is concerned with efficient use of the resources because reductions is cost lead to the higher profit. अच्छा, why management focus on the efficiency? Because समझो, अगर आपको एक गोल अचीव करना है कि मुझे 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करने में आपने कर लिया विथ इन टाइम. आपको एक ऑर्डर मिला कि आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है बाय ऑफ 20th जनवरी तक आपको कर लेना है. ठीक है, आपने कर लिया, आपने 17th जनवरी तक अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपका कॉस्ट बहुत लगा दिया, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों को इन्वॉल्व किया, उसमें बहुत लेबर लगाया, ऐसे करके कर लिया एंड वेस्टेज भी बहुत हुआ, वो तो बहुत, बट आपने काम कंप्लीट कर लिया. सो ये इफ़ेक्टिव है बट इट इज़ नॉट एफिशिएंट ना, बिकॉज जितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा आपके काम में उतना आपका प्रॉफिट कम होगा. इट मीन्स यू आर putting more cost in the productions of a product, one single units, that will lead to the lower profit. So आपका तो मेन मोटिव ही है. हाँ, अगर आप NPO हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, देन कोई बात नहीं है, लेकिन अगेन वहाँ पर भी कि एफिशिएंटली आप ह्यूमन ज़्यादा यूज़ कर लो, लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जो कि आप दूसरी चीज़ों में अच्छे से यूज़ कर सकते थे. सो इसीलिए मैनेजमेंट फोकस ऑन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. इफेक्टिव मीन्स डूइंग द राइट टास्क एंड एफिशिएंट इन अ राइट वे, डूइंग द राइट टास्क इन अ राइट वे जो ज़रूरी है. ठीक है, एक डिफरेंस दिया है छोटा सा. मीनिंग क्या है? इट रेफर टू द कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट. अगेन आई एम सेइंग दैट एन इफेक्ट, अगर आप इफेक्टिव है सो मीन्स आपका सिर्फ टास्क कंप्लीट होगा एंड कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है या फिर वेस्टेज ज़्यादा हो सकते हैं. यू आर इफेक्टिव बट इफ़ यू आर एफिशिएंट इट मीन्स you are completing the task with a minimum cost, optimum utilizations of the resources and in cost effective manner, and the objective to achieve an end result and to कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. अच्छा, इफेक्टिवनेस का रिलेशंस किससे है कि हमको एंड रिजल्ट अचीव करना है कैसे भी हो, बाय हुक और क्रुक. एंड एफिशिएंसीज का एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि कितना कॉस्ट देने से हमको कितना बेनिफिट होगा प्रॉफिट में. एंड डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द टास्क इन अ राइट वे. सो आई होप कि आपको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज का पूरा क्लियर एग्जाम कंप्लीट हो. एंड द मैनेजमेंट कितने, द कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ दिस 3 स्टेप्स, ये भी कंप्लीट हो. एंड मैनेजमेंट का डेफिनेशंस, बिकॉज एक सिंगल क्वेश्चंस भी आ सकता है यहाँ से. अब वर्ड टू वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये डेफिनेशंस इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप वर्ड टू वर्ड लिख के आओ. ठीक है, ज़्यादा बड़ा डेफिनेशंस भी नहीं है. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग डन्स विद एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. 3 स्टेप्स होते हैं प्रोसेस में आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ प्रोसेस में आप लिख सकते हो कि हाँ, दैट एंड मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ द इंटर रिलेटेड फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन एंड देन प्रोसेस इंक्लूड द फंक्शंस आर प्लानिंग, ऐसे लिख सकते हैं. इफेक्टिवनेस में टू डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द टास्क, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू अचीव द एंड रिजल्ट्स. एंड फिर एफिशिएंसीज में आप लिख सकते हैं डूइंग द राइट टास्क इन अ राइट वे विद अ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. सो एक सिंपल सा डेफिनेशंस दे देना है 2-3 लाइन का एंड एक्सप्लेन कर देना है चीज़ों को. सो यू विल गेट द फुल मार्क्स. Now relations between again the efficiencies and effectiveness and the conclusions में आप लिख सकते हो that an effectiveness and efficiencies are equally important, as being effective means completing the task, but it is not enough to just complete the task, it must be done correctly without any wastage of the resources. Again कि सिर्फ effective होने से नहीं होगा, आपको efficient भी होना चाहिए कि आपको ना आप पूरा complete करें अपने task को, means you should be effective but it must be done correctly विदाउट एनी. सो यहाँ तक तो ये लोग इफेक्टिवनेस का बात करें एंड दिस पॉइंट आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसीज. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वन विदाउट अदर इज़ ऑफ नो यूज़. अगर आप इफेक्टिव है तो कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज आपका वो कोई मतलब ही नहीं है कि आप टास्क सिर्फ अचीव कर ले रहे हो. तो टास्क अचीव करके क्या होगा जो अगर आप एफिशिएंट ही नहीं हो. Effectiveness and efficiencies together lead to the higher profit and prosperity of an organization. See, अगर आप effective भी है means you are completing the task in on time, and efficient भी है कि आप cost benefit analysis भी कर रहे हो. It means आप higher profit earn करोगे, higher profit होगा मतलब आपके organization का growth होगा. And failure of an organization is due to inefficiency. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का अज्यूम किया इट इज़ कंपलसरी कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है सो इट्स गोइंग टू फेल वेरी सून.
ओके, आई होप कि आपको मैनेजमेंट का बेसिक, मैनेजमेंट का डेफिनेशंस, उसके प्रो कंसेप्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ एंड इफेक्टिवनेस एफिशिएंसीज यहाँ तक क्लियर हो. देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप. सो इस पेज में देयर डेफिनेशंस ऑफ द डिफरेंट ऑथर क्या दिया है, मैनेजमेंट डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट बाय द डिफरेंट ऑथर्स. तो ये आपको कुछ कुछ याद करना होगा, बिकॉज अगर एमसीक्यू में आ सकता है कि एक मैनेजमेंट का डेफिनेशन दे दिया एंड बोला कि किस ऑथर का है, सो यू हैव टू गो थ्रू बाय इट कि हाँ ये इसका है. थोड़ा सा आइडिया रखना, इसमें कीवर्ड्स होते हैं दैट इन कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन. तो ये आपने देख लिया तो आपको ये समझ लीजिए कि ये मैरिड इसका है. एंड द मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. आपको याद हो जाएगा कि FW टेलर का है. एंड मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट यू मैन टू डू. एंड देन सो इसमें है कि आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली तो आप बोल सकते हो जेम्स का है. एंड इसका डेफिनेशंस बहुत एमसीक्यू में बहुत बार आता है कुर्ट्स टनल का, दैट इन एस्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द पीपल ऑपरेटिंग इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप. सो आप ये भी ऐसा कर सकते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस और अगर इफेक्टिव एनवायरनमेंट बोल रहा है तो कुर्ट्स टनल का है. ठीक है. एंड मैनेजमेंट इज़ द क्रिएशंस ऑफ द एंड टू मैनेजर्स इज टू फॉरकास्ट. ये नॉर्मल जनरल डेफिनेशंस दिया गया, ये भी आप कर सकते हो. लेकिन ये जो 4 डेफिनेशंस दिया है ये बहुत चांसेस है कि एमसीक्यू में आपसे पूछ ले. ठीक है. या फिर समथिंग ऐसा भी आ सकता है कि आपको एक बोल दिया किसी का डेफिनेशन दे के एंड देन से कमेंट, तो वहाँ पर आप लिख के मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. सो आई नो पॉइंट टू पॉइंट किसी को भी याद नहीं होगा, बट आई एम गोइंग टू से आई एम सेइंग दैट कि कीवर्ड्स याद रख लो इसमें से जो भी हाईलाइट अंडरलाइन किया है, सो दैट इट विल बी ईजी टू आइडेंटिफाई एट द राइट लास्ट टाइम. ठीक है कि अच्छा हाँ ये वाला उसमें पढ़ा था तो इसका है. ठीक है. अगेन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया. इट्स वेरी इजी. एंड देन की वर्ड्स किया है कि लास्ट टाइम आपका रिविजन के टाइम यू कैन गो थ्रू विद द ईच एंड एवरी वर्ड्स लास्ट टाइम. सो यहाँ पर आपको समझ आ सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे बात बोल. सो द थर्ड पॉइंट इज टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडीज़ बन सकता है, यहाँ से MCQ आ सकता है. सो एक्स्ट्रा फोकस लगेगा इस टॉपिक पर. सो मेक श्योर यू शुड फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हियर. सो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. पहला फीचर क्या है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. इतने देर से हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते आया है एंड द फर्स्ट थिंग वी हैव रेड कि मैनेजमेंट क्या अचीव करना है, गोल अचीव करना है. तो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड. याद रखना है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. साथ साथ 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो याद हो जाता है पूरा. तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. व्हाट इज़ अ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. अच्छा थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते. ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम्स में. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड ही लिख के आना है. ठीक है. बट हाँ थोड़ा सा बुक से रिलेटेड टॉपिक हो, मतलब कंसेप्ट्स हो, वर्ड्स हो, कीवर्ड्स आप मिस ना करें, बिकॉज मेन मार्क्स आपका कीवर्ड्स में होता है. सो कीवर्ड्स मेक श्योर कि आप थोड़ा कीवर्ड्स को फोकस करें, थोड़ा रिवाइज कर ले तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती है एंड एग्ज़ाम के टाइम वो याद आ जाते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पर ये पढ़ा था. सो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. मैनेजमेंट का एम क्या है? ऑलवेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बात किया है, यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव का बात अभी नहीं किया है. ठीक है. सो मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर्स लेड टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट यूनाइट करता है एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड अचीविंग द कॉमन गोल. सो सी, तो हमने पहला पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड. अब गोल ओरिएंटेड क्यों है? बिकॉज इट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. जो भी फंक्शंस है एंड एक्टिविटीज़ है मैनेजर्स का, वो क्या करता है? लीड टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट ऑल डायरेक्टेड टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अगर मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस में, सो वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का एफर्ट्स को यूनाइट करता है जो कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को इन द ऑर्गेनाइजेशंस टूवर्ड अचीविंग द कॉमन गोल, कि कॉमन गोल को अचीव करने में इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल्स है ऑर्गेनाइजेशंस, वो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं उसको यूनाइट करता है. ओके. So it will very helpful. Okay. So that is why it's saying that management is a goal-oriented process. So the second is a management is a pervasive. What do you mean by the pervasive? Again, I'm saying that in
knowing the exact meaning of the words is very important, because MCQ है, आपसे पूछ सकता है कि परवेसिव का मीनिंग क्या हो सकता है। यहाँ पर भी आप कि डोंट टेक इट लाइटली एनीथिंग। ओके, management is pervasive. Managerial activities are performed in all type of the organizations, in all department and at all level. Pervasive means everywhere, it can't be avoided, ठीक है, ईजिली अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको। सो परवेसिव क्या है कि तो मैनेजमेंट को ना हमको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पहले पेज में ही हम लोगों ने पढ़ा था दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एक्टिविटी, कुछ भी मैनेजमेंट फॉलो होगा। तो यहाँ पर भी वही बात बोला है कि मैनेजेरियल एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑल डिपार्टमेंट एंड एट ऑल लेवल। ये नहीं बोल सकते कि लोअर लेवल डिपार्टमेंट है तो इसमें मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा, या टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं तो मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा। नहीं, मैनेजमेंट विल बी फॉलोड एट एवरी लेवल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इन एवरी डिपार्टमेंट। Management is required in all the organizations, whether big or small, manufacturing or service organizations, profit or non-profit making organizations. Okay, concept of management is used in the whole world. याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में हैं तो इंडिया में ही मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, होल वर्ल्ड में मैनेजमेंट फॉलो होता है। What managers do in India, USA, Germany और जापान is same. How they do it may be quite different. क्या करते हैं वो सेम है, मतलब कैसे करते हैं वो that might be different हो सकता है। तो अब ये क्या याद करना है? नहीं, you can say that management is pervasive, that management is applicable in all the organizations and irrespective of their size, activities. आप लिख के आ सकते हो, and it must be followed in all the departments and at all level. Okay. A management is a multi-dimensional. That in management does not mean one single activity, but it is include 3 main activity. याद रखिएगा कि मैनेजमेंट में 3 मेन एक्टिविटी इंक्लूड होता है। ये ज़रूरी नहीं है आप बोल दिया कि मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं। 3 मेन एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। एंड द फर्स्ट वन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द वर्क। मैनेजमेंट पहला डायमेंशनल क्या है, एक्टिविटी मल्टी डायमेंशनल बोला गया, तो इस मल्टी डायमेंशनल पहला एक्टिविटी क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द वर्क। एंड द सेकेंड इज़ मैनेजमेंट ऑफ द पीपल एंड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस। तो पहला पढ़ा था हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ द, सो मैनेजमेंट डज नॉट मीन्स वन सिंगल एक्टिविटी। याद रखिएगा कि मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है। फ्रॉम द बिगनिंग वी आर से रीडिंग कि मैनेजमेंट सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, ये एक एक्टिविटी है ही नहीं। सो पहला एक्टिविटी क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल एंड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस। ओके, सो मैनेजमेंट ऑफ द वर्क में क्या होगा, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप फॉर्म कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, स्टैब्लिश कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई एक कॉमन टास्क है या गोल है। उसीलिए रैंडमली कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं होता है। तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम्स एट अचीविंग द, सो मैनेजमेंट पहला बात है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के किसी गोल से, सो and then second step is you are following the management activity, that means you are that aim at achieving the goals or tasks to be accomplished. The task of work depend upon the nature of the business. For example, work to be accomplished in a school is providing educations, in hospital is to treat patients, in industry is to manufacture some product. Management makes sure that work is accomplished effectively and efficiently. So management of the work है, इसमें आपको अब याद नहीं करना ही है। आप एक डेफिनेशन दे सकते हो कि दैट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप विद अ कॉमन गोल, मैनेजमेंट activity aims at achieving that common goals and that achieving goals and tasks to be accomplished, and it makes sure that an work is accomplished effectively and efficiently. and इसके साथ कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि हम अगर स्कूल है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल है तो पीपल ट्रीट करना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ओके, डन। मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, दैट एंड पीपल रेफर टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पर पीपल मतलब कौन किसको रेफर करे, ह्यूमन रिसोर्सेज को। एंड पीपल रेफर टू द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। लाइक अगर बोल दे अगर कोई पर्सन है जिसके पास नॉलेज है, हैविंग द कॉम्पिटेंट नॉलेज मतलब सही नॉलेज है, देन ऑर्गेनाइजेशन विल ट्रीट हिम और हर लाइक एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। आप इजीली रिप्लेसेबल नहीं हो सकते, ठीक है, but you should have the competent knowledge and you know how to apply that knowledge. Okay, that and people refer to the human resources, and human resources are the most important assets of an organizations. Management has to get the task accomplished through people. मैनेजमेंट क्या है, टू टास्क अकम्प्लिश्ड करना है पीपल से बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड द वीकनेस इररेलेवेंट। इसमें यहाँ पे क्या बोला है कि मैनेजमेंट ऑफ द पीपल लाइक मैनेजमेंट में, और ये
सो मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, पहले हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट ऑफ द वर्क हो रहा है. सो मैनेजमेंट इज़ नॉट अबाउट मैनेजिंग द वर्क बट ऑल्सो अबाउट द पीपल हु आर परफॉर्मिंग द वर्क. Okay, so it referred to the most important assets of the management has to get the task accomplished through the people by making their strength effective. जो भी एक इंसान का, जो भी इंसान किसी भी काम को परफॉर्म कर रहा है, तो मैनेजमेंट का मेन पर्पस रहेगा कि उस इंसान के जो भी स्ट्रेंथ है उसको इफेक्टिव करे एंड जो भी वीकनेस है उसको इरेलीवेंटली ट्रीट करे, कि उसको ज़्यादा फोकस नहीं देने. हाँ, अगर उसके वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करे, अदरवाइज नहीं. The managing people has two dimensions: taking care of the employees' individual's need and taking care of the group of the people. Like अब how to manage the people, अब उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसको समझाना एक अलग चीज़ है, लेकिन मैनेजिंग यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट में बोल रहा है. दैट इन द फर्स्ट वन इज उसके इंडिविजुअल्स नीड को आइडेंटिफाई करो, उसका टेक केयर करो कि हाँ देखो कि उसका इंडिविजुअल नीड्स फुलफिल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर उसका इंडिविजुअल नीड फुलफिल नहीं होगा तो वो ही इज़ नॉट अ सेटिस्फाइड पर्सन एंड वन डे ही विल डेफिनेटली लीव द ऑर्गेनाइजेशंस. एंड देन टेकिंग केयर ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी ग्रुप काम कर रहा है उसका भी नीड को देखो. ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस रेफर टू द एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल such as buying the input, converting them into the semi-finished goods and the finished goods. Management of the operations concentrate on mixing the management of the work and the management of the people, that is deciding what work has to be done, how it has to be done and who will. So operations का मतलब क्या होता है? Activities of the प्रोडक्शन साइकिल. कि पहला है कि आप इनपुट्स खरीद के लेके आ रहे, फिर उसको सेमी फिनिश में कन्वर्ट करें, देन फिनिश गुड्स में. सो यहाँ पे कहते हैं ना, मिक्स होता है, कंबाइन करते हैं हम लोग. और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में वी आर कंबाइनिंग द अबव टू एक्टिविटीज़. ओके, डन. सो द फोर्थ पॉइंट इज द मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. अच्छा, सो एक बार अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कर दिया तो देन दैट्स इट? नहीं, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. यू हैव टू परफॉर्म इट एवरी डे. ओके, यू कांट से कि आज परफॉर्म किया अब 10 दिन बाद परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शंस. ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली. जितने भी फंक्शंस है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस को आपको कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है. ऐसा नहीं कि एक बार प्लान कर दिया उसके बाद नहीं करेंगे. बोला कि नहीं एक बार प्लान का होता है और फिर बार बार और सारे फंक्शंस परफॉर्म किए. नहीं, यू शुड हैव, यू हैव आपका, बिकॉज आप याद करो आपका लास्ट स्टेप क्या, मॉनिटर करना. मॉनिटर किया, आपको कोई भी गड़बड़ दिखा, प्रॉब्लम दिखा, तो फिर आपको प्लान करना होगा ना कि इसको सॉल्व कैसे करना. प्लान किया तो फिर ऑर्गेनाइज, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. Okay, for example, planning, organizing, staffing, directing and controlling are performed by all the managers by all the time. Sometimes they are doing planning, then staffing or organization, etc. Manager perform ongoing series of functions continuously in the organizations. Done. सो अंडरस्टैंड. अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने कि फीचर्स क्या मैनेजमेंट के, कि फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, कि इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है. फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. सो यहाँ हम बोल सकते हैं कि दैट एन मैनेजमेंट यूजली एसोसिएटेड विद द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप. यू कैन सिंपली राइट दैट एन मैनेजमेंट यूजली एसोसिएटेड विद द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप. ओके, मैनेजमेंट ऑल्सो ऑलवेज रेफर टू द ग्रुप ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल एक्टिविटी. सो मैनेजमेंट क्या है? It refer to a group of the people who are involved in the managerial activity. Each individual perform his or role at his or status and department, then only management functions can be executed. Even the results of the management affects every individuals and every department of the organization. So it is always refer to the group efforts and not the individual effort of one person. Simply write, you are not have to read and write the exam मतलब पूरा word to word, because ये आपको याद भी नहीं रहेगा. और अगर आप वर्ड टू वर्ड याद करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी पजल्ड एट द लास्ट मोमेंट, बिकॉज बहुत कुछ रहता है, काउंटिंग रहता है, कॉस्ट, टैक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं एंड उन सबको मैनेज करके चलना है. और लास्ट मोमेंट में इतना टाइम नहीं रहता है कि सब कुछ वर्ड टू वर्ड आप रिवाइज कर पाए. सो यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट. सो आप लिख सकते हो, बिकॉज ऐसे ज़रूरी नहीं है ना कि आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट उठा के दे दिया कि ये लिख के दिखाओ. नहीं, केस स्टडीज़ भी आ सकते हैं. तो यू हैव टू एलैबोरेट, यू हैव टू डिफाइन, डिस्कस दैट केस स्टडी एट दैट मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट रैपिडली. सो वहाँ पर आपको याद किया हुआ कुछ याद नहीं आएगा, जो आपने समझा है वो जल्दी आपको याद आ जाएगा. सो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी यूजली एसोसिएटेड विद द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप. याद रखिएगा पॉइंट्स को.
एंड दैट मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट ये ऐसा नहीं फिक्स्ड फंक्शन नहीं है, ऐसा केस स्टडीज ये एमसीक्यू भी आ सकता है, वेदर मैनेजमेंट इज़ अ फिक्स्ड फंक्शन, तो नहीं, मैनेजमेंट डायनामिक है, बहुत चेंजेस होते रहता है. So management has to make changes in the goal, objective and other activity according to the change taking place in the environment. Let's assume कि हम कुछ एक्टिविटी अचीव करना चाहते थे, कोई हमारा ऑब्जेक्टिव था. After we are in the process of achieving that objective, okay, we are doing the planning, organizing ऐसा. सडनली गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि अब से ये काम जो भी करेगा ये इलीगल है, ये काम ही इलीगल है. सो अब आप क्या बोलोगे कि नहीं, मैंने तो ऑब्जेक्टिव पहले से सेट कर लिया था, मुझे यही अचीव करना है. ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना होगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ऑब्जेक्टिव में चेंजेस लेके आना होगा. ठीक है, ये एक एग्जांपल है. हम आपको फिर अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाना. एंड सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि आप अचीव करोगे. ठीक है, आपने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, सब कुछ कर रहे हो. सडनली हो गया कि जो भी कॉस्ट था आपका गुड्स का, प्रोडक्शंस का, वो इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, सडनली इंक्रीज़ हो रहा है जस्ट बिकॉज रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है. ठीक है, सडनली इन्फ्लेशंस की वजह से, या फिर टैक्स, गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया है, हाई रेट टैक्स इम्पोज कर दिया, तो उसकी वजह से. सो क्या आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मैंने ऑब्जेक्टिव का पहले ही सेट कर लिया था, मैं उसी रेट में नहीं कर सकते था. बिकॉज मार्केट में जो डिमांड है, मार्केट में जो भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमको चेंजेस लेके आने होंगे अपने. तो उस अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, या फिर आप अपना कॉस्ट देखोगे. ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप चेंजेस लेके आओगे. या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जो भी आपने सोचा था रिक्रूटमेंट में इतना पैसा लग सकता है, इतना खर्चा हो सकता है, या फिर इतने लोग लगेंगे, वैसा नहीं हुआ, एज़ एक्सपेक्टेड नहीं हुआ. या एज़ एक्सपेक्टेड आपने सोचा था इतना रिसोर्सेज यूटिलाइज़ हो जाएगा, वो उससे ज़्यादा हो गया, तो लास्ट एंड मोमेंट पर आपको रिसोर्सेज और लेके आना पड़ा, तो उसमें जो कॉस्ट लगा वो ऐड हुआ. तो ये सब चीज़ें आपको चेंजेस आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको फेस कर सकते हैं. अब ऐसा हो सकता है कि आपने जब डायरेक्शन दिया तो स्टाफ को समझ ही ना आए कि क्या डायरेक्शन है, या फिर वो उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट ना कर पाए, तो फिर वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा. वहाँ पर भी आपको कुछ चेंजेस लेके आने होंगे. कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तो कम्युनिकेट कैसे हो, वहाँ पर चेंजेस लेके आना होगा. या फिर मॉनिटरिंग कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि बहुत लैक है आपका स्टैंडर्ड में, और देन एक्चुअल परफॉर्मेंस में बहुत लैक है, तो बहुत गैप हो रहा है, तो वहाँ पर आपको चेंजेस लेके आना है. तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, and the process should be flexible so that you can easily make the changes. Okay, the external environment such as the social, economical and technical and the political environment has great influence over their management. Again say कि अगर आपका टैक्स में कोई चेंजेस आ गया, जो टेक्नोलॉजी के साथ आप काम करें तो वो आउटडेटेड हो गई, या वो टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर दी. टेक्नोलॉजी समझो आप इंपोर्ट करें, वो काम नहीं कर रही, अब वो टाइम लगा, तो उस चीज़ में आपको फेस करना पड़ेगा ना. सोशल चेंजेस आए, समझो ऐसा हो जाए सोसाइटी अपोज कर रही है, आप जो चीज़ों को प्रोड्यूस करें उसको अपोज कर रही है सोसाइटी, तो ये सोसाइटी या फिर ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया कि आपके प्रोडक्ट की वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हार्म हुआ, तो उसकी वजह से चेंजेस मांग रहे हैं, तो अब आपको चेंजेस करने होंगे उसमें. ठीक है, एज चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट सेम आर इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कम्पिटेटिव वर्ल्ड. अगर आपने बोला कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं हम उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो यू विल बी थ्रू आउट ऑफ द मार्केट very easily, because nowadays the market is very competitive. You have to adopt the changes before they occur. आप अगर देख रहे हो, आपको पहले से एनालिसिस करना होगा कि इस टाइप के चेंजेस मार्केट में आ सकते हैं, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट चेंजेस. ओके, आप चेंजेस आया उसके बाद उसको समझ रहे हो, उसके बाद उसको अडॉप्ट करें, तो आप तक पीछे रह सकते हो थोड़ा सा. आपको ये प्रोसेस बहुत रैपिडली करना होगा. ठीक है, बहुत क्विकली कि अच्छा कोई चेंजेस आया, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ठीक है मुझे इसको एक्शंस लेना है. लेकिन अगर आप यू आर टेकिंग द टाइम, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर द मार्केट टू थ्रो यू आउट ऑफ द मार्केट. इंटेंजिबल, तो लास्ट में बोला इंटेंजिबल, दैट एंड मैनेजमेंट क्या है, दिखता नहीं है हमको, इट इज़ अ माइंड कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है. ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ड. द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड द कोऑर्डिनेशंस इन द वर्किंग एनवायरनमेंट. सो मैनेजमेंट कोई भी आपका ऐसा टैंजिबल नहीं है कि मतलब दिख जाए कि अच्छा ये मैनेजमेंट है, नहीं, इट इज़ एन इंटेंजिबल थिंग. इट कैन बी फील्ड कि अच्छा ठीक है ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही हो रहा है, इसको इस वे में करना चाहिए तो इस वे में ही हो रहा है.
आप ऑर्डर देख रहे हो काम का कि अच्छा इस ऑर्डर में मैंने काम को सेट किया था, इसी ऑर्डर में काम हो रहा है जो कि सही वे है, या कोऑर्डिनेशन से डिपार्टमेंट्स में, वर्किंग एनवायरनमेंट में, सो इट मीन्स दैट मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है। सो डन। यहाँ पे अगेन चार्ट के थ्रू समझाने का कोशिश किया। एंड मोमेंट पे आप पढ़ सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है, इंटेंजिबल है। Here it is nothing, again keywords मेंशन किया गया है कि मैनेजमेंट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट्स, ये सब ये थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो अदरवाइज नहीं। अगर आपने प्रीवियस जो पढ़ा है वो अगर आपने अच्छे से समझा है तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। MCQs है कि स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन से देख लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो डू टेल मी कि अच्छा, तो आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। सो हियर द पॉइंट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। अभी तक हम लोगों ने मैनेजमेंट का बेसिक पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा, उसका कितने कंसेप्ट्स पढ़े, एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस का डिफरेंसेस पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिया। अब नाउ द ऑब्जेक्टिव कि मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ एंड टूवर्ड विच द, जितने भी एक एंडिंग पॉइंट है, इट इज़ एन एंडिंग पॉइंट्स जिसके वहाँ पर हम लोग मतलब उस पॉइंट के डायरेक्शंस में हमने अपना पूरा एक्टिविटी को डायरेक्ट किया गया है। सो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड। ओके, the managerial objective of an organization can be classified into 3 major categories and the objective को 3 major categories में classified किया गया है, organizational objective, social objective and the personal objective। organizational objective है और social objective and personal objective है। organizational objective, the first one is these objectives aimed at prosperity and the growth of the organization। so पहला मेन ऑब्जेक्टिव अगर ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है तो मेन इसीलिए कर रहा है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और कोई मैटर नहीं है उसको। दैट सोशल ऑब्जेक्टिव सेकंड पॉइंट है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव थर्ड पॉइंट पर, बट द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी गोल है उसको अचीव करना। दीज ऑब्जेक्टिव एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मेन एम क्या है, प्रॉस्पेरिटी and growth of the organizations। Generally, it is assumed that profit maximization is the main objective of every organizations, but it is not true। अच्छा, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है मतलब उतना ग्रो कर रहा है, ठीक है, दैट एन मेन ऑब्जेक्टिव है, या फिर प्रॉफिट अर्न कर रहा है उतना वही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, बट ऐसा हर टाइम ट्रू नहीं हो सकता। पढ़ेंगे। द मैनेजर ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज। सर्वाइवल, अच्छा, द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन मैनेजर्स आर, अगेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर्स आर 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपको ऐसा नहीं है कि अपने आपसे पूछा ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट तो आपने जस्ट ये वाला पॉइंट लिख देना, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट इवन इन अ 1 लाइन, यू हैव टू एक्सप्लेन। सो पहला पढ़ लिया कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स एम्ड एट प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्रोथ एंड द 3 इंपॉर्टेंट एंड अगेन we also say that in profit maximization is not always the main objective of the organizations, and the 3 main objective क्या है, survival। सर्वाइवल क्या है, दैट एंड बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव। आज आप मार्केट में कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि मैं सर्वाइव करूँ, पहले तो मैं इस मार्केट में, कम्पिटिटिव मार्केट में टिक जाऊँ, उसके बाद आप सोचोगे प्रॉफिट एंड ग्रोथ का, पहले टिको। तो द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का कि आप पहले सर्वाइव करो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट एंड दिस कैन ओनली बी अचीव बाय कवरिंग योर कॉस्ट। जितना आप कॉस्ट इंकर कर रहे हो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में वो एटलीस्ट कवर कर लो मार्केट से। अगर आपने 100 रुपये इंकर किया एक प्रोडक्ट को, एक पेंसिल को बनाने में आपने 10 रुपये लगाया और आप उसको जब बेच रहे हो तो आपको 8 रुपये ही मिल रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स कि यू आर नॉट एबल टू कवर द कॉस्ट। तो आप ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में नहीं रह सकते हो, इट मीन्स आप लॉस इंकर कर रहे हो एंड आपका घर से पैसा जा रहा है एंड वो डूबेगा ही डूबेगा, वो मार्केट में आपको सर्वाइव नहीं कर सकते आप, चलिए। सो फर्स्ट यू हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट कि एंड सर्वाइवल कैसे होगा कि जो भी आप 10 रुपये अगर लगा रहे हो तो आप एटलीस्ट 10 रुपये कमा लो, ठीक है। सो दैट इज़ सर्वाइवल पॉइंट। अगर आपने एक बार सर्वाइवल कर लिया, नाउ थिंक अबाउट द प्रॉफिट।
The most important objective of every organization is earning adequate amount of profit. इस लाइक अगर आप 10 रुपये लगा रहे हो तो एटलीस्ट 15-20 रुपये रखो आप, जिससे 5 रुपये आप प्रॉफिट अर्न कर पाओ, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज सर्वाइवल तो हमारा मेन मोटिव नहीं था ना बिजनेस करने का, कि बस सर्वाइव ही करते रहे। नहीं, प्रॉफिट है तो एक वो अमाउंट हम अर्न कर पाए। प्रॉफिट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस। बिकॉज प्रॉफिट होगा फिर तब आप जाके नेक्स्ट टाइम सर्वाइव करोगे, फिर ग्रोथ का सोचोगे, फिर एक्सपेंशंस का सोचोगे। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट को और क्या बोल सकते हैं कि रिवॉर्ड है, कि आपने जो भी रिस्क लिया था इस मार्केट में रहने के लिए, वो एक उसका रिवॉर्ड है। The third is the growth. The business organizations must grow and expand their activity. The success of any organization is measured by the growth rate, and the growth is measured in terms of the sales, number of the branches, number of the product, number of the employees, etc. So पहला हो गया business organizations must grow and expand. पहले तो आपने सर्वाइव किया मार्केट में, फिर जब आपने देखा कि मेरा सर्वाइवल पॉइंट ठीक है तो आपने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट अर्न करके क्या बैठे रहोगे? नहीं, उसको एक्सपैंड भी तो करना है बिजनेस को, ताकि आप और ज़्यादा अर्न कर पाओ, ठीक है। सो आई होप कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपको ईजी वे में क्लियर हो। सोशल ऑब्जेक्टिव सेकंड पॉइंट में दिया गया है। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ने के पहले मैं बता रही, बिकॉज जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज़ करें, वो रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी से। सो we have the some responsibility toward the society. As a businessman, we have some responsibility toward the society, so we must fulfill that responsibility, okay. The social objective of the organization deal with the commitment of the organization toward the societies. Business organizations are the part of the society. They earn by using the resources of the society, so they must do something for the society also. Like business organizations के society के ही part है, and then they are able to doing the business with the help of the resources that the society have. So the business organization must have some responsibility toward the society. Like major social objectives क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो वो क्वालिटी का हो, एक गुड क्वालिटी का हो, एंड एट ए रीज़नेबल प्राइस। ऐसा नहीं है कि आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो लेकिन आपका प्राइस बहुत हाई है। सो इट मीन्स यू आर नॉट सोशल ऑब्जेक्टिव आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। सोसाइटी को आप कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो यहाँ पर। कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटी देखो कि क्या है, उसको परफॉर्म करो। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हो। इट मीन्स आप अगर सोचो आप किसी एरिया में बिजनेस कर रहे हो एंड उस एरिया के लोगों को ही आप एम्प्लॉय कर रहे हो, इट मीन्स आप उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, और जो कि बहुत बड़ा इशू है अभी दुनिया में, मोस्टली इन इंडिया में, कि आपका एम्प्लॉयमेंट। सो उसको आप रिजॉल्व करो, मतलब थोड़ा सा ही पोर्शन रिजॉल्व करो, बट एटलीस्ट कर तो रहे हो ना, मतलब सोसाइटी की तरफ कुछ तो कर रहे हो। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करो। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दो, और एजुकेशनल हेल्थ प्रोग्राम। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एनजीओ एंड गवर्नमेंट के जो सोशल एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट है उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस, आप ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहे हो, कार्बन का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों पर आप ध्यान रख रहे हो। यू आर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के बैकवर्ड सेक्शंस लोग हैं, वीकर सेक्शंस के लोग हैं, उनको आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे, तो ये सब आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। And the last objective is the personal objective. So personal objective is the individual objective are related to the employees of the organizations, as employees are most important resources of every company and satisfied and motivated employee contribute. यहाँ पर बोला है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें आप उनके भी ऑब्जेक्टिव्स, उनके पर्सनल नीड्स को भी फॉलो करो, देखो एंड इंश्योर करो कि दे अचीव देयर पर्सनल नीड्स। बिकॉज अगर वो अपने पर्सनल नीड को अचीव नहीं करें, सो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट मोटिवेटेड टू परफॉर्म द टास्क, and one day they will definitely leave for the better opportunities. The main individual objective of the managements are competitive salary दे रहे हो आप to fulfill the financial needs of the employee. Everyone
doing the employment or job to support their financial needs. और अगर आप competitive salary provide नहीं करें तो जो भी अगर other organizations है वो अगर वो salary competitive salary provide करें तो they will easily move to that organizations. And then promotions कर रहे हो आप, training दे रहे हो, पर अगर आपका employees को आप देख रहे हो कि अच्छा किसी portions में इसका lack of knowledge है तो you are train them. पर्सनल ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय कर रहे हो टू फुलफिल द स्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ द पीयर रिकग्नाइजेशन कर रहे हो दैट आप उसको अप्रिशिएट्स कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट इसका दे रहे हो, रिस्पेक्ट फॉर द कलीग्स टू फुलफिल द सोशल नीड, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़. आप एक गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस रख रहे हो, हेक्टिक कंडीशंस नहीं रख रहे कि प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, ओवरलोड नहीं कर रहे हो आप. एंड द वर्कर्स में लूज द इंटरेस्ट इन द वर्क इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड. मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. केस स्टडीज़ में भी आ सकता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो फॉलो कर रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को नेग्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से एकदम आ सकता है. तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशंस देके ये वाला पूरा पॉइंट को अगर आप डिस्क्राइब कर दो तो फुल मार्क्स आपको मिल सकता है. ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी डिफाइन करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है. याद रखना कि अगर किसी टॉपिक को आप डिस्क्राइब करें उसमें जो भी टर्म्स आ रहे हैं उसको एज फार एज पॉसिबल कि आप उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो. जैसे यहाँ पर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिस्क्राइब कर दो पहले, ठीक है. तो उसके बाद आप ये वाला लाइन लिखोगे तो इट विल बी वैलिड एंड एग्जामिनर, बिकॉज एग्जामिनर को नहीं पता आपने कितना पढ़ा है क्या नहीं, लेकिन आपका आंसर्स उसको पता चलेगा कि आपने कितना लिखा है, ठीक है. सो इट विल बी ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लिख क्या हो जो भी आपको पता है, ठीक है. डन. तो यहाँ पे चार्ट के थ्रू आपको बताया गया बिकॉज ये इतना बड़ा टॉपिक है एंड इसके थ्रू आपको याद रहेगा कि हाँ ये कीवर्ड्स है, ऐसे लिख के आना है, ऐसे थोड़ा टॉपिक है, ठीक है. यहाँ पर कुछ एक केस स्टडीज़ दिया हुआ है, बस ये थोड़ा सा आप गो थ्रू कर सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ फॉर द टुडेज class is the importance of the management. Importance of the management is again very important part. यहाँ से केस स्टडीज़ भी आ सकते हैं, MCQ भी आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो यू शुड गो थ्रू बाय A business organizations attain top positions only because of the quality of the management. Again, अगर आपका मैनेजमेंट का क्वालिटी ख़राब है तो आप टॉप पर तो कभी पहुंच नहीं सकते. सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव their गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग द डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड द मैनेजमेंट. याद करिए ये द फर्स्ट लाइन था जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर के बिगनिंग में पढ़ा था. ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ द टाइम, मनी एंड एफर्ट. अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो आपका जो भी मनी है, पीपल एंड टाइम है, वो एफर्ट्स है, वो सब वेस्टेज होने वाला है. मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू द पुअर मैनेजमेंट. जो भी आपका बिजनेस अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं है तो फेल हो सकता है. मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस. विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शंस रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शंस. अगर आप मैनेजमेंट नहीं करें तो आपका रिसोर्सेज रहेगा, प्रोडक्शंस नहीं होगा वो कभी भी, बिकॉज मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग. अगर आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो कि आपको क्या करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहे तो वो रिसोर्सेज का कोई मतलब ही नहीं है. इन द absence of management no organizations can run successfully. The major importance of the managements are. तो यहाँ पर ये पढ़ लिया कि इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लिख के आना होगा एग्ज़ाम में, बट इट इज़ बेटर कि इम्पॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करने के पहले 1 और 2 पॉइंट्स आप मैनेजमेंट के बारे में लिख लो कि क्यों इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद आप अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर स्टार्ट करोगे तो इट वेरी ईजी, एक गुड इम्प्रेशंस बनता है. सो यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट्स. आप लिख सकते हैं. अगर आपका 5 मार्क्स का है तो आपको पहले पॉइंट लिखना होगा एंड देन पूरा डिस्क्राइब करना होगा. रिमेंबर कि पॉइंट लिख के उसको हाईलाइट करिए हमेशा, बिकॉज मेन फोकस वहीं जाता है. लेकिन अगर 3 मार्क्स 2 मार्क्स या कुछ भी नॉर्मल मार्क्स के क्वेश्चंस आए या किसी क्वेश्चंस में अटैच है कि ये डिस्क्राइब करो उसके साथ इंपॉर्टेंस भी डिस्क्राइब करो. सो रिमेंबर कि आप डायरेक्ट स्टार्ट राइटिंग, आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना होगा. आप जस्ट स्टार्ट करो पॉइंट्स, वो मेन कंटेंट जो पॉइंट का है वो कंटेंट लिखना स्टार्ट करो, पॉइंट्स नहीं दो. हाँ, उसमें जो पॉइंट्स अगर आ रहे हैं कुछ वर्ड्स है कीवर्ड्स तो उसको हाईलाइट कर देना. तो उसमें जो अगर वर्ड्स आ रहे हैं कि जैसे समझो कि हमने लिखना मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल. सो अगर आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसमें आ रहा है कि अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल, तो उस पॉइंट उस सेंटेंस को आप हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अगर 5 मार्क्स का है तो यू शुड डायरेक्टली पॉइंट वाइज आपको लिखना चाहिए. कंपलसरी है कि आप पॉइंट वाइज लिखो, इट इज़ वेरी कंपलसरी. और उस पॉइंट में जो कंटेंट लिख रहे हो उसको थोड़ा अगर आप अंडरलाइन कर लो तो वो अच्छा रहेगा, गुड इम्प्रेशंस रहेगा. सो
इसके मेरे अपने पर्सनल नोट है, आप इसे भी पढ़ सकते हो, या फिर आप ये पॉइंट देके ये कंटेंट भी लिख सकते हो, या फिर आप बुक जो आपको ईजी हो, बेनिफिशियल हो, आप इजीली रिकॉल कर पाओ चीज़ों को, वही आप लिखें। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। सो मैनेजमेंट ट्राई करता है टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि एक पहले हमने पढ़ा था ना पर्सनल गोल में कि मैनेजमेंट शुड इंटीग्रेट द इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो अचीविंग द ग्रुप गोल, सो ग्रुप गोल का बोलने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव होगा, इंडिविजुअल्स का भी गोल अचीव होगा। एंड मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द ग्रुप गोल। एंड ये हेल्प करता है कि कॉमन गोल में एक कॉमन डायरेक्शंस में एक्टिविटी परफॉर्म हो, सो दैट ऑब्जेक्टिव अचीव्ड है। मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ें तो मैनेजमेंट ब्रिंग टुगेदर द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डायरेक्ट देम टुवर्ड्स वन कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंस्टेड ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मैनेजमेंट एंश्योर द यूनिटी ऑफ द डायरेक्शंस। आपको जो भी इफेक्टिव लगे आप वो पढ़ सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसीज। फ्रॉम द बिगनिंग से पढ़ते हैं एफिशिएंसीज एफिशिएंसीज एफिशिएंसी। सो मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगेन कि यहाँ पे इफेक्टिव का बात नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी का बात है। एफिशिएंसीज का बोलने का मतलब का कि आपका कॉस्ट रिड्यूस रहे, इम्प्रूव करे आप प्रोडक्टिविटी को। एंड मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसीज एंड इफेक्टिवनेस इन वर्क थ्रू प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मैनेजमेंट्स एम एट रिड्यूस करेंगे कॉस्ट, कि मैनेजमेंट का एम है आपका कॉस्ट रिड्यूस करना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को अवॉइड करना एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। दिस इज डन थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ से लिख सकते हैं आप, या फिर बुक्स में जैसे दिया वैसे जो आपको ईजी लगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगेन मैनेजमेंट क्या क्रिएट करे, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन पर हमने इसके पहले भी पढ़ के आया फीचर्स में कि डायनेमिक है, चेंजेस एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस अडॉप्ट करना होगा। सो बुक में एक्सप्लेन किया है दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस। कि इन्वायरमेंटल चेंजेस में जो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजर चेंजेस लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में। द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज। क्या होता है ना, एम्प्लॉयज़ अगर एक वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं तो उसको लगता है इसी में करते रहे, बिकॉज वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो अगर उसको कल को बोलो कि नहीं नहीं अब ऐसे काम होगा तो करे, बोलेगा नहीं हम ऐसे ही करेंगे। सो ये मैनेजमेंट इंश्योर करेगा कि कौन क्या काम करता है, कब करेगा, कैसे करेगा एंड चेंजेस को अडॉप्ट करेगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट एम्प्लॉय टू अडॉप्ट द चेंजेस। अगर आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, तो बोलता है कि चेंजेस को अडॉप्ट करे विलिंगली बाय कन्विंसिंग देम दैट चेंज इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बट इन इम्प्रूव द एम्प्लॉयज़ वर्क ऑल्सो इन द। अच्छा, अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है नॉट एफिशिएंट के बारे में बात करें, याद रखिए कहाँ एफिशिएंट और कहाँ इफेक्टिव वर्ड यूज़ हो रहा है। अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, इट मीन्स दैट इट मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड उनको कन्विंस करता है बहुत वेरी इजी वे में कि देखो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही नहीं है, तुम्हारे लिए भी चेंजेस है। यू गेट द capability of adopting the things and get the chances of working in a competitive environment. So ऐसे कन्वेंस करता है, सो दैट एम्प्लॉयज़ ना मोटिवेट होता है, अच्छा हाँ मतलब मेरे में अडेप्टेबिलिटी स्किल आ रहा है, मैं और थोड़ा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग, मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट टू दिस चेंजेस एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट द चेंजेस विलिंगली। ओके, क्रिप्स टू द पॉइंट आप लिख सकते हो या फिर आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच टाइम यू हैव। ओके, मेक श्योर कि आप टाइम मैनेजमेंट भी करें एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए, एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में यानी कि ज़्यादा टाइम लगा दे और आपका लास्ट में 10-15 मार्क्स छूट जाए, 20 मार्क्स छूट जाए। तो ये मेक श्योर करें कि टाइम मैनेज फ्रॉम द बिगिनिंग से ही करें। ठीक है, और मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव दैट एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग द मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय। मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट एन अलॉन्ग विद एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ द एम्प्लॉय इज ऑल्सो अचीव्ड। सो मैनेजर इंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव हो रहा है लेकिन इंडिविजुअल्स गोल भी अचीव हो, एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल्स गोल आर इन वन डायरेक्शंस ओनली। इंडिविजुअल्स क्या करता है, अर्न करना चाहता है ज़्यादा एंड ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, तो एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर। सो अगर ये मैनेजर ये आइडेंटिफाई कर ले कि एम्प्लॉयज़ का मेन मोटिव है ज़्यादा अर्न करना,
और उनका मेन मोटिव है कि प्रोडक्शन ज़्यादा करना, तो वो इस चीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं ना कि जो जितना अर्न प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा अर्न करेगा, सो एक मोटिवेशन मिल सकता है उनको। दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप्स। मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग आप देखें तो मैनेजमेंट बैलेंस द ऑर्गेनाइजेशनल गोल विथ इंडिविजुअल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ वांट बेटर सैलरी एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशंस वांट हायर प्रोडक्शन, मैनेजमेंट अलाइंग बोथ सो बोथ बेनिफिट, कि दोनों को इस तरीके से अलाइन करता है कि दोनों को बेनिफिट मिले। फिफ्थ पॉइंट इज़ द मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगेन इसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़े कि मैनेजमेंट दैट इन ऑर्गेनाइजेशंस का ये ड्यूटी है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड परफॉर्म सम सर्टेन फंक्शंस टुवर्ड द सोसाइटीज। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज़ अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, दे गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द सोशल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर्स एटसेट्रा। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग द क्वालिटी गुड, competitive salary, create employment opportunity. By increasing the production, management also contribute to increase the GDP and lead to the growth of the nations. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है कि सोसाइटी की तरफ आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्वालिटी गुड्स से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, कम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करो, और आपका जितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ऑल्सो ये कंट्रीब्यूट करता है GDP इंक्रीज करने में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट लीड टू द ग्रोथ ऑफ द नेशंस। और अगर मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग आप देखें तो यहाँ पर एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रोड्यूस द क्वालिटी गुड्स, प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, पे फेयर वेजेस, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इंक्रीज द GDP एंड द कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल ग्रोथ। सो दीज वर द 5 इम्पॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, आप लिख सकते हो क्लियरली डिफाइंड। लास्ट में आप एक कंक्लूजन पॉइंट भी दे सकते हो कि दैट मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर अचीविंग द गोल, इम्प्रूविंग एफिशिएंसीज, अडॉप्टिंग टू द चेंजेस, सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयज, प्रमोटिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो आई होप कि आपको इम्पोर्टेंस अच्छे से क्लियर से समझ आया। सो स्टूडेंट, इन टूडेज वीडियो वी डिस्कस द बेसिक मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा, फीचर्स पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा इन डिटेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शंस। And so this is the first part of this chapter, and the second part we will cover the remaining portion of this chapter in detail and with easy explanations and the exam oriented point. So make sure you don't miss the next video. If you found this video helpful, please like, share, subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in the part 2.